Hello, today we will discuss about the subject Applied Mechanics of third semester. These subjects explain the concept of mechanics like law of motion, forces, moment and friction, center of gravity, acceleration due to gravity, law of actions, etc. To understand the various principles of engineering mechanics. Firstly, we will discuss the introduction part of this subject, which covers the definition of mechanics, statics and dynamics, their applications, definitions of different units, drive units and different type of unit symbols like density, force, pressure, power, electricity, velocity, etc. Come on the point. What is engineering mechanics and how it is differentiated? Engineering mechanics is a part of engineering which includes two parts, mechanics of fluids and mechanics of solids. Mechanics of fluids contains compressible fluids, viscous fluids and ideal fluids. And the mechanics of solids covers the deformable bodies and rigid bodies. Deformable bodies have theory of elasticity and strength of material form. And the rigid bodies covers dynamics and statics. In dynamics, there are two parts, kinetics and kinematics. What is mechanics? Mechanics being a branch of physical science which deals with the motion of bodies under the action of forces. Means a body when it is in force and we discuss about its physical properties, it's the mechanics. In other words, it determines the state of motion of bodies under the effect of force. Conversely, it determines the force impacting a certain state of motion of two bodies. Mechanics therefore forms the basics for understanding the behavior as well as the design and analysis of all engineering structures and machines. Thus, it gives the idea about the movement of bodies, force acting on the bodies, and the effect of the forces on the bodies upon which they act. So, the whole nutshell in mechanics, we will discuss about the movement of body, forces on the body, and the effect on these forces of the body. Okay. Definition of applied mechanics. The engineering mechanics which deals with the study of application of different law of mechanics or applied to the solution of various engineering problems is called the applied mechanics. When the system of forces act externally on the rigid body, it gives either acceleration or develop a resisting force, that is the reaction on the body. And when the system of forces affect internally on the body, the change in the shape of the body takes place. Branch of applied mechanics divided into two parts, statics and dynamics. Statics, it is the branch of applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon the body at rest or in equilibrium. For example, study of equilibrium of a book lying on a table, or force in various members of truss and tensions in the rope of the pulley. Means a body is in a stationary position and some forces are acting on it. The study that is called the static forces. And the dynamic, it is the branch of applied mechanics which deals with the forces and their effect while acting upon the body in motion. Here, when the body is in motion, and here when the body is in rest position. Body is in at rest position or in equilibrium position. This is the basic difference in dynamic and static. For example, study of different forces acting on the various part of the watch. Dynamic is further subdivided into two branches, kinematics and kinetics. Dynamics के two parts रहेंगे आगे, kinematics and kinetics. स्टैटिक्स में कोई पार्ट नहीं है, स्टैटिक्स सिंपल है, उसके बीच में जहाँ बॉडी रेस्ट में है वो स्टैटिक्स आ जाएगा, जहाँ बॉडी मोशन में है वो डायनेमिक्स आ जाएगा. ठीक है जी. अब काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है? फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स. इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with a body in motion without considering the forces which cause that motion. For example, freely lying body under
gravity and relative velocity of the boat or the river. And kinetics, it is that branch of dynamics which deals with the body in motion, considering the forces acting cause that motion. For example, acceleration and retardation of a moving body. Here we क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन भी डिस्कस कर रहे हैं और रिटार्डेशन भी डिस्कस कर रहे हैं किसी मूविंग बॉडी का, तो वो काइनेटिक्स में चला गया। और इस केस में क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी है वो फ्री फॉल है, जैसे आपके पास बोट है, आपके वाटर में चल रही है, वो फ्री फॉलिंग है, तो उसकी यदि हम स्टडी करते हैं फोर्सेस की तो वो काइनेमेटिक्स में चला जाएगा। और यहाँ पे यदि हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों कर रहे हैं, मूविंग बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हो गए आपके पास, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स आ गया। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड। फर्स्ट जैसे आप करते हैं द स्ट्रेसेस और ऑफ ब्रिजेस एंड ट्रसेस। एक ब्रिज के ऊपर आपके पास क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं, क्या ट्रसेस लग रहे हैं, जो पार्ट्स हैं उनके बीच में, और कितना लोड लगा हुआ, उस चीज़ को डिस्कस करना, वो सब किस में आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। सेकंड, डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। यदि कोई बिल्डिंग डिज़ाइन की है, उसके बीच में आपके पास रोप्स लगी हुई हैं, आपके पास पिलर्स लगे हुए हैं, तो इन सब के बीच में गार्डर्स लगे हुए हैं, इन सब के डिस्कशन के क्या फोर्सेस लगते हैं, वो सब आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएंगे। द लेआउट फोर्सेस इन द एयर एंड वाटर। द बॉयंसी फोर्स, द बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स यदि हमें कैलकुलेट करना है, यदि कोई फ्लोटिंग बॉडी है लाइक शिप है या बोट है आपके पास वाटर में, और उसके बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, फोर्थ इज द फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन और प्रोजेक्टाइल। यदि कोई एरोप्लेन है, उसकी फ्लाइट्स हैं, उसके कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वो सब मैकेनिक्स का पार्ट है। द मोशन ऑफ द व्हीकल्स, यदि कोई व्हीकल है और वो मोशन में है, तो आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आ जाएगा। मोशन ऑफ द शिप और बोट इन द सी। यदि किसी शिप का या बोट का मोशन है किसी सी में, समुद्र में वो चल रहा है, तो उसके मोशंस के बारे में यदि आपने स्टडी करना है, तो वो भी पार्ट्स किसका हो जाएगा, मैकेनिक्स का। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। बेसिक क्वांटिटी जो हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, फर्स्ट इज द मैटर। इट इज डिफाइंड एज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस वेट। इट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर सेल्स। जो भी हमारा होगा उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बॉडी, इट may be defined as the limited portion of matter or composed of very large number of small particles। ये चाहे छोटी क्वांटिटी में हो या ज़्यादा में हो, लेकिन वो बॉडी जिसके बीच में हम काम कर रहे हैं लिमिटेड पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। पार्टिकल, ए बॉडी निग्लिजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड द पार्टिकल। एक बॉडी है जिसका निग्लिजिबल डायमेंशन है, कोई डायमेंशन नहीं है। इन द मैथमेटिकल सेंस ए पार्टिकल इज ए बॉडी हुज डायमेंशन अप्रोच जीरो। जिसका हम डायमेंशन अप्रोच जीरो करेंगे, मतलब कम से कम जिसका वो होगा, पार्ट होगा, डायमेंशन होगा, इसको पार्टिकल बोल देंगे। जो हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, दीज आर यूज फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट्स। द क्वांटिटीज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड द बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ। वो क्वांटिटी जिनको किसी और के साथ कंपेयर करके नहीं बनाया जाता, दैट आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स, लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, MLT। इसको फॉर्म को हम बोल देते हैं मास, लेंथ और टाइम, MLT। इसमें लेंथ की बात करते हैं, लेंथ हम सब जानते हैं, द बेसिक क्वांटिटी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड द लेंथ। लेंथ क्या चीज़ है, आपके पास स्पेस में दो पॉइंट हैं, इन पार्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, और किस में लेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, mm, किसी में भी। मास, amount of matter contained in a body is called the mass। तो कितना मैटर है एक उसमें बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द मास। इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल केसेस इन मैकेनिक्स। ये सभी केसेस में कांस्टेंट रहेगा यदि आप मैकेनिक्स की बात करते हो। द मास ऑफ द बॉडी इज नोटेड बाय m एंड एक्सप्रेस इट्स मैग्नीट्यूड। हम इसको किससे डिनोट करेंगे, m से, इसको करेंगे h से। ठीक है, टाइम को करेंगे t से, स्मॉल t से। द यूनिट ऑफ मास इज SI इज किलोग्राम। हम इसको किलोग्राम में लेते हैं, विच इज मास ऑफ द 5.018 × 10⁻25 एटम्स ऑफ द कार्बन 12। ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद है आपके पास टाइम। द बेसिक क्वांटिटी यूज फॉर मेकिंग द फ्लो ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द टाइम। इट इज डिनोटेड बाय t। ये टाइम हम जानते हैं, और इसको डिनोट लिया जाएगा सेकेंड्स में, मिनट्स में।
ठीक है ना, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सेकेंड्स। इसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. It is a scalar quantity and it is the unit in SI unit is in meter. 1 meter is the distance that contains 650763.73 wavelengths of orange red light of KR86. इसमें क्या होगा कि टोटल एक बॉडी पॉइंट ए और पॉइंट बी है आपके पास। बॉडी ने पॉइंट ए से बॉडी में पॉइंट बी तक गया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। इसको लेंथ मिलेंगे, मतलब मीटर मिलेंगे, कितने मीटर में गया, ठीक है जी। जबकि लेंथ क्या थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का। और जबकि डिस्टेंस क्या होता है कि जब यहाँ से मूव करता है और यहाँ पहुँचता है, इनिशियल पोजीशन को u इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो भी हो, उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस। सेकेंडरी क्वांटिटी इन मैकेनिक्स, ऑल क्वांटिटीज अदर देन लेंथ, डिस्टेंस, मास एंड टाइम आर कॉल्ड द सेकेंडरी। इनके अलावा जो अलग क्वांटिटीज होंगी दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट्स कह देते हैं उनको। जैसे कि आपके पास क्या होता है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, सेकेंडरी क्वांटिटीज। ऑल दिस क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इन सभी को फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से उसमें डिनोट किया जाएगा, मीन्स MLT फॉर्म में आप उनको डिनोट करेंगे। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है, मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आपके पास मीटर में आ गया m और टाइम t में आ गया t, तो इसकी जो MLT फॉर्म आ जाएगी mt माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो MLT फॉर्म है, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इन ड्राइव यूनिट्स को निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ अपॉन यूनिट टाइम, तो LT माइनस 2 आ गया। यदि हम यहाँ वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी क्या होती है ना, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम सर। तो सेकेंडरी क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सेकेंडरी क्वांटिटीज, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। द डायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज यूनिट इज SI यूनिट। ये यहाँ पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स यदि आप डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन भी दिखानी है कि मीन्स वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी में। और इसकी यूनिट वही रहेगी, मीटर में रहेगी, SI यूनिट। SI मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। Next is the speed and velocity. The distance traveled by the body per unit time without any reference of the direction of motion is called the speed. It is scalar quantity. यहाँ पे क्या लिखा आपको, स्केलर क्वांटिटी, उसमें क्या लिखा था, वेक्टर क्वांटिटी। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे स्केलर रहेगा, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होगी। और यदि यहाँ वेलोसिटी आ जाता है तो वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, डिनोटेड बाय s, स्मॉल s, and its unit is meter per second. The distance traveled by the body per unit time is a particular direction is called the velocity. सेम उसमें वही लिखा है, यहाँ भी लिखा है, इसमें लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखा है ना यहाँ पर, और उसमें हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लिखा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये स्केलर में आ गया, इस कॉल्ड द वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे लिखा हमने वेक्टर क्वांटिटी, उसको लिखा था हमने स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया आपको, स्पीड में स्केलर रहेगा, वेलोसिटी वाले में अब वेक्टर रहेगा, डिनोटेड बाय v। और उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मीटर पर सेकंड। सेम यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड। MSI एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, v by t, denoted by a and its unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये यूनिफॉर्म रहेगा वेलोसिटी के लिए। सेम है, आपने पढ़ा ही होगा। फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्शन व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। डिनोटेड बाय फोर्स फॉलो फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज नोटेड बाय साइन। ये न्यूटन में लिया जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, F इज इक्वल टू ma। इसके बाद वेट। वेट में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, जहाँ पे मास में हम सिर्फ मास लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विच अट्रैक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द वेट ऑफ द बॉडी
वेट में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर कर लेते हैं। और डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम अपॉन एस, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अलग इसके अलावा यूनिट्स के अलग अदर यूनिट्स हैं, जैसे डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अदर यूनिट्स में फंडामेंटल ड्राइव, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, फंडामेंटल यूनिट कौन से, MLS वाली और ड्राइव आपने जो किए हैं। इनके आगे यूनिट्स के सिस्टम्स होते हैं कुछ। फर्स्ट सिस्टम इज द FPS, फुट, पाउंड एंड सेक। सेकेंड सिस्टम CGS, सेंटीमीटर, ग्राम। सेकेंड सिस्टम थर्ड इज MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम। सेकेंड सिस्टम एंड SI द सिस्टम, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम। अभी आपके पास ये डिस्कस हो रहेगा। FMS आपको बता ही दिया कि इसके बीच में हम फुट लेंगे। CGS में वही सेम आगे लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें ऐसा यूनिट में आपके पास जैसे किलोग्राम हो गया KG में, मीटर हो गया M में और सेकंड हो गया टाइम में, ठीक है। ये सेम रहेगा जो अभी